last lecture, we have discussed the electric field due to different shapes of conductor. We have already discussed electric field due to the point charge, electric field due to the circular ring, charged circular ring, electric field due to charged circular arc, electric field due to the straight conductor of finite length, electric field due to the straight conductor of infinite length. This sort of length or this sort of shapes of the conductor we have already considered. Now we are going to deal with the potential energy. So potential energy से क्या समझते हैं? सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन मेरा हर समय यही रहता है, जो वर्ड है उसे समझते क्या है? जब भी एनर्जी जैसा कोई वर्ड आता है तो इसके साथ वर्क डन जुड़ा हुआ है, इस चीज को सदा ध्यान रखिए। जब भी कहीं एनर्जी लग रहा है उसके साथ वर्क डन जुड़ा हुआ है। सो वी कैन राइट द वर्क डन in bringing the charge from infinity to a point is the potential energy. Of the charge at that point. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। जब हम वर्क डन की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन dW is equal to FdR. F is the force between the charges, so we can find K Q1 Q2 y r square dr dW होगा। W is equal to dW is equal to K Q1 Q2 dr by r square। ऐसा होगा क्या? अगर ये ऐसा होता है तो हमारे पास होता है K Q1 Q2 minus 1 by R. R varies from infinity to suppose R. ठीक है, हमारे पास क्या हो गया? W is equal to minus K Q1 Q2 by R. This is the work done in assembling the charges. Now we have work done is equal to change in negative of change in potential energy. So the change in potential energy is equal to K Q1 Q2 by R. इस चीज का सदा ध्यान रखिए। K Q1 Q2 by R। अब यहां तक अगर कोई बात समझ में आती है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कोई भी दो चार्ज है, तीन चार्ज है, चार चार्ज है, अगर वो एक जगह प्लेस्ड है तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है तो वी आर रिक्वायर्ड टू गेट द स्केलर सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। I mean to say, suppose three charges Q, Q, Q are placed on the vertex of an equilateral triangle of side A. So what is the potential energy of the system? We can write U is equal to U A B C, UAB plus UBC plus UCA. UAB
is kq square by kq square by kq square by a, that is 3k q square by a. 3k q square by a. It's a scalar quantity. That should be always kept in mind. अगर इस तरह की बातें होती है तो समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं, समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रहे चीज का। नाउ हमको देखना है, अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जान गए तो व्हाट इज पोटेंशियल। ड्यू टू द चार्ज। The potential energy per unit test charge is the potential of the charge at that point. कहने का मतलब है the potential energy per unit test charge is the potential of the charge at the point of test charge। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा, चार्ज एट द पॉइंट ऑफ टेस्ट चार्ज। अगर ऐसा है यू कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ये सारा कुछ समझने की जरूरत है आपको। कहने का मेरा मकसद ये है, कहने का मेरा मकसद ये है कि मान लेते हैं दो चार्ज का सिस्टम है, एक है Q और दूसरा चार्ज है Q, separated by distance R. Now Q is the test charge. Q is the test charge. What is the potential energy of the system? That is delta U is equal to K Q by R। कोई दिक्कत? अभी हम लोग प्रूफ किए। Now we are required to find potential change in potential energy per unit test charge is equal to KQ by R। इसी को हम लोग बोलेंगे डेल्टा V KQ by R। We used to write the change in potential. We take generally the potential at the infinity is 0. We can go for the V only. We can go for V only. इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। Now, from here we can find delta U by Q is equal to delta V. So delta U is equal to Q delta V। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए किसी भी तरीका से। कोई दिक्कत बाबू? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी हो, कैसे भी हो, 10 चार्ज हो, 10 का कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दीजिए। कहीं भी किसी को पोटेंशियल निकालना है तो के क्यू बाय आर कर देंगे और कुछ करना ही नहीं है। दीज आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम लोगों ने कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोगों ने कर लिया पोटेंशियल एनर्जी, हम लोगों ने कर लिया पोटेंशियल। Is there any relation between electric field and potential? Yes, it is. Let us find the relation between electric field and potential.
we have work done dW is equal to FDR. We have QEDR. We have minus du. कोई दिक्कत नहीं, is the case. So minus du is equal to QEDR. हम लोग निकालेंगे माइनस du by q is equal to EDR. माइनस du by q अभी हम लोग निकाले हैं, माइनस dv is equal to EDR and E equal to minus of dv by dr. इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा. We have E equal to minus of dv by dr. तो हम लोग लिख पाएंगे dv equal to minus of E dot dr. It is the dot product of the electric field and the position, displacement. Now, अगर यहां तक बात ठीक समझ में आई है तो बाबू हमको ये बता दीजिए what is E? E we can write as EXI, EYK, EZK cap. DR we can write as DXI cap, DYJ cap, DZK cap. So E dot dr we can write as EX dx plus EY dy plus EZ dz, है ना. हमारे पास dv क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू माइनस ऑफ EX dx माइनस EY dy माइनस EZ dz. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा. अब स्पेशली मुझे चाहिए EX. इफ यू वांट द टू फाइंड EX, तो EX क्या हो जाएगा, माइनस dv बाय dx, EY हो जाएगा माइनस dv बाय dy और EZ हो जाएगा माइनस dv बाय dz. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस. जिसका बॉक्स बना रहे बाबू, इसको एकदम दिमाग में बिठा के रख लीजिएगा. ऐसे समय पे काम देगा जहां आप पूरी तरह से कंफ्यूज कर चुके हैं. मैं फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूं टॉपिक को. इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा. इस तरह का ऑपरेशन बहुत कम बुक्स में अवेलेबल है. जो है जैसे भी है, यहां तक करने के बाद अगर कोई भी आपको दिक्कत होता है, कमेंट में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है. फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. ये छोटी छोटी बातें बहुत ही ऊपर ले जाएंगे आपको. कुछ है नहीं है, टॉपिक का फुल्ली अंडरस्टैंड करना, पूरी तरह से समझना, उसको पूरी तरह से अप्लाई करना, ये सारा कुछ आपको बहुत ऊपर ले जाने वाला है. और आप देखेंगे फिजिक्स एक चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा आपके लिए, एक खेल हो जाएगा आपके लिए. सब कुछ आपको फील करवा दूंगा मैं. बगैर फिजिक्स के आप साहब खड़े नहीं हो सकते, बगैर फिजिक्स के आप बैठ नहीं सकते, बगैर फिजिक्स के आप सांस नहीं ले सकते, बगैर फिजिक्स के आप का ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो सकता. क्या चाहिए और आपको, क्या चाहिए आपको? सब कुछ फिजिक्स ही है, सब कुछ फिजिक्स है. आप देख नहीं सकते बगैर फिजिक्स के, आप सुन नहीं सकते बगैर फिजिक्स के. सब कुछ फिजिक्स ही है. तो फिजिक्स तो हमारी जिंदगी है ना. जिंदगी से हम खिलवाड़ करेंगे कभी? हम लोग को जिंदगी के साथ रहना है, तो हम लोग को फिजिक्स के साथ रहना है.
तो जिंदगी को समझने की थोड़ी सी ताकत लगाते हैं और फिजिक्स को समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be dealing with dipole. समझ गए बात? We will be finding electric field and potential due to dipole. Thank you very much. Thank you very much.